Hello everyone, welcome in RK Tutorials Simdega YouTube channel. I am RK sir. Today we are going to discuss about causative of past continuous tense because previous class already we have finished that causative of past indefinite tense. I hope you have completed, that means you are able to do. So let's start first. Rule of distinguish the sentence, that means which type of sentence is called causative of past continuous tense. So rule is saying that जिस वाक्य के अंत में वा रहा था, वा रही थी, वा रहे थे उसे पॉजिटिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें साइकिल चलवा रहा था, हम लोग तुम्हें पेड़ लगवा रहे थे, सीता तुम्हें भात पकवा रही थी, वे लोग तुम्हें गाना गवा रहे थे। सो इफ यू फाइंड आइदर ऑफ सेंटेंस इन हिंदी देन विदाउट हेजिटेशन यू कैन से दैट दिस सेंटेंस इज बिलोंगिंग फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो प्लीज टेक पेन एंड कॉपी एंड राइट डाउन विथ मी हाउ। प्लीज लिसन। जिस वाक्य के अंत में वा रहा था, जिस वाक्य के अंत में वा रहा था, वा रही थी, वा रहे थे, वा रहे थे, रहे, उसे कॉजेटिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। सो लेट्स प्लीज टेक सम हिंदी एग्जांपल। मैं तुम्हें हल चलवा रहा था, हम लोग तुम्हें पेड़ लगवा रहे थे, पेड़ लगवा रहे थे। वेरी सिंपल। इफ आई से तुम मुझे कपड़ा धुलवा रही थी, तू मुझे कपड़ा धुलवा रही थी, वह तुम्हें बांसुरी बजवा रहा था, वह तुम्हें बांसुरी बजवा रहा था, वे लोग तुम्हें गणित बनवा रहे थे, राम तुम्हें चित्र बनवा रहा था। आई कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। सीता तुम्हें पानी लवा रही थी। So that whatever I have taken the Hindi example, end of the sentence you are looking that वा रहा था, वा रहे थे, वा रही थी। Again you can look वा रहा था, वा रहे थे, वा रहा था। Again you can look here वा रही थी। That's why I have told you that जिस वाक्य के अंत में वा रहा था, वा रही थी, वा रहे थे, रहे, उसे कॉजेटिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। यू कैन लुक सम एग्जांपल व्हिच इज रिटन बाय मी। मैं तुम्हें हल चलवा रहा था, हम लोग तुम्हें पेड़ लगवा रहे थे, तुम मुझे कपड़ा धुलवा रही थी, वह तुम्हें बांसुरी बजवा रहा था, वे लोग तुम्हें गणित बनवा रहे थे, राम तुम्हें चित्र बनवा रहा था, एंड सीता तुम्हें पानी लवा रही थी। So that whatever I have taken the Hindi example, you are looking here वा रहा था, वा रहे थे, वा रही थी। That's why I have given the rule। जिस वाक्य के अंत में वा रहा था, वा रही थी, वा रहे थे, रहे, उसे causative of past continuous tense का वाक्य कहते हैं। I hope you are able to do। So let's start rule of making sentence। Rule of making sentence is saying that subject plus was and were plus making plus object plus V1 plus main object। So I am writing, please again you take pen and copy and write down with me how subject plus was or were. You know very well in which subject we can use was and were plus making. This making is causative verb plus object, and this object will use for the person. After that V1, after that you can use main object. I hope you are understanding. So finally I have written the rule. I hope you have completed, so that I can say once again subject plus was and were, but you have to careful here was and were. Making object, it is depend upon the demand of the sentence. Each and every class I am saying V1 is compulsory and here main object. So let's we take some example. If I say that
मैं तुम्हें आम तोड़वा रहा था, दैट मीन्स मैं नहीं तोड़ रहा था, मैं तुम्हें आम तोड़वा रहा था, देन आई कैन सी आई was making you break mango. If I say हम लोग तुम्हें आम तोड़वा रहे थे, देन we were making you break mango. If I say तू मुझे आम तोड़वा रहा था, देन you are making me break mango. If I say वह तुम्हें आम तोड़वा रहा था, देन he was making you break mango. Very simple, break mango. Only I am changing the subject, so you have to be careful. वह तुम्हें आम तोड़वा रही थी, देन अगेन she was making you break mango. If I say वे लोग तुम्हें आम तोड़वा रहे थे, देन they were making you break mango. If I say राम तुम्हें आम तोड़वा रहा था, देन राम was making you break mango. So I have completed. So let's we discuss once again in Hindi. हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस मेन ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट रूप में मैंने क्या लिया? आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड राम सभी सब्जेक्ट है. उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है? वाज और वर. ये एस है, ध्यान रखिएगा. तो वाज किसके साथ लगता है आपको पता है ना? आई, ही, सी और एनी नेम के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वाज. और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर. दैट मीन्स वी के साथ, यू के साथ एंड दे के साथ वर का प्रयोग किया जाता है. आपको पता ही है क्योंकि हम लोग टेंस में पढ़ चुके हैं. उसके बाद हमारा क्या कहता है? मेकिंग. तो ये मेकिंग हर एक सेंटेंस में, क्योंकि ये मेकिंग ना पॉजिटिव वर्ब है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस V4. तो ये V4 के बदले में हम लोग मेकिंग यूज कर रहे हैं एज ए पॉजिटिव वर्ब, इसलिए सभी में क्या दिख रहा है आपको? मेकिंग. उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड हर एक क्लास में बताता हूं ये ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए यूज होता है और डिमांड के अनुसार यू एंड मी का मैं प्रयोग किया हूं. अदर भी हो सकता है. उसके बाद V1. तो V1 के रूप में मैं आज यहाँ क्या ले आया हूं? ब्रेक मतलब तोड़ना, आप जानते हो. उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट. तो मेन ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या लिया? मैंगो. तो फाइनली हमारा रूल क्या हो रहा है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस मेन ऑब्जेक्ट. So let's become Hindi translation. Then I can say that I was making you break mango. हम लोग तुम्हें आम तोड़वा रहे थे. You are making you break mango. हम लोग तुम्हें आम तोड़वा रहे थे. You are making me break mango. तुम लोग मुझे आम तोड़वा रहे थे. He was making you break mango. वह तुम्हें आम तोड़वा रहा था. She was making you break mango. वह तुम्हें आम तोड़वा रही थी. They were making you break mango. वे लोग तुम्हें आम तोड़वा रहे थे. Ram was making you break mango. राम तुम्हें आम तोड़वा रहा था. Like that you can say how. मैं तुम्हें आम तोड़वा रहा था, हम लोग तुम्हें आम तोड़वा रहे थे, तुम मुझे आम तोड़वा रहा था, वह तुम्हें आम तोड़वा रहा था, वह तुम्हें आम तोड़वा रही थी, वे लोग तुम्हें आम तोड़वा रहे थे, राम तुम्हें आम तोड़वा रहा था. लाइक दैट यू कैन टेक लोड्स ऑफ एग्जांपल. सपोज दैट आई एम सेइंग दैट मैं तुम्हें पेड़ लगवा रहा था, देन व्हाट विल हैपन? आई वाज मेकिंग यू प्लांट ट्री, वी वर मेकिंग यू प्लांट ट्री, यू आर मेकिंग मी प्लांट ट्री, ही वाज मेकिंग यू प्लांट ट्री, शी वाज मेकिंग यू प्लांट ट्री, दे वर मेकिंग यू प्लांट ट्री, राम वाज मेकिंग यू प्लांट ट्री. Like that you can take lots of example. I hope you are able to do. So how to remember? जिस वाक्य के अंत में वा रहा था, वा रही थी, वा रहे थे, रहे, उसे पॉजिटिव और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं. जैसे मैं तुम्हें पत्र लिखवा रहा था, हम लोग तुम्हें गाना गवा रहे थे, राधा तुम्हें कथक नचवा रही थी. रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस मेन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आई वाज मेकिंग यू ब्रेक मैंगो, वी वर मेकिंग you break mango, you are making me break mango, he was making you break mango, she was making you break mango, they were making you break mango, Ram was making you break mango. So you have to remember like that. Then bit by bit you will speak English, you will learn the causative and
you will do each and everything in English. So I hope you are able to do. So let's start speech. In speech today I have taken the topic book fair. It is little bit different from other, but I want to say something in Hindi. ये जो मैं टॉपिक लिया हूँ बुक फेयर, वो मैं अपने से फॉर्म किया हूँ। मैं सिमडेगा से हूँ, तो सिमडेगा का स्थान को लेकर वैसा बड़ा बुक फेयर सिमडेगा में हुआ नहीं है। एक बार कोई छोटा बुक फेयर हुआ था, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इमेजिन करके, मतलब मैं सोच कर एक टॉपिक तैयार किया हूँ। ये सब काल्पनिक है। आप भी अपने अनुसार वाक्य बनाने का कोशिश कीजिएगा, जैसे मैं बना रहा हूँ। मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ आपको कि आपको हमसे बेहतर बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट बुक फेयर। My dear friend, we know that Jharkhand is land of fair, just like Tusu fair, Khadi fair, Gandhi fair and Ramrekha fair. But today I am going to discuss about the book fair. At Simdega Court Ground, that means Albert Ekka Stadium, first time book fair is going on. Sunday it was holiday, so that we decided to visit the book fair with my friend. So that we reached the book fair, then we looked. Lots of people were wandering here and there just like a worker. Then we thought, what should we do? Then my friend said we should start from the right side. We entered book fair, then we looked. Lots of books were there, so that we were unable to decide which book is good for us because we had limit money. We were feeling very tired and thirsty, so that we decided to eat something. So we went near the thela and we ate samosa, chaat and water bowl. After the eating, we visited once again. Then I bought a competition book for me, a religious book for my grandmother and a cartoon book for my younger brother. It was going to evening, so that we came back home by the auto. So it was my memorable day. Thank you very much. I hope you are able to do about the book fair, so that you have to try to make the sentence and you have to send me as a voice message, then it will good for you. So thank you very much for watching my video, taking my class.